Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. Myself, Lokesh. Today's new topic is DPSP, that is Directive Principle of the State Policy, right? Which comes under the part 4th of the Indian Constitution, comprises Article 36 to Article 51. Now, what was the use of, to introduce a DPSP when already we had a fundamental rights, when we had already preamble in the constitution? So the story of the DPSP, see, the founding fathers of the Indian constitution, they knows that the country is going through, the poverty, the country is facing illiteracy, the country is facing the water problem, the country is facing so many other ill problems of the society. So they know that by this instrument of DPSP they can they can address all these problems. So when it comes to DPSP, the main fundamental work of DPSP is to promote the idea of socio-economy, or we can say political democracy. But although the political democracy, the main political democracy is been addressed by the fundamental rights, but in DPSP we also say that the main work of the DPSP is to promote the idea of socio-economic democracy in the society, right? So when we start the DPSP, the first important thing we should know that the DPSP comes under the part 4th of the Indian Constitution, comprising Article 36 to 51, right? Now we'll start DPSP. Basic background, we have already told you that this comes under the part 4th, spanning from Article 36 to 51 in the Indian Constitution. And the nature of the DPSP is non-justificable in the nature, and that was recommended by the Tej Bahadur Sapru Committee report. Non-justificable in nature means that when your DPSP is violated, whatever that is written in Article 36 to 51, you cannot approach, that is not your legal right that you can acquire. You cannot directly approach to the court when it comes to the case of fundamental right. I have told you in the fundamental rights chapter that when the fundamental right is violated, anybody can directly approach to the Supreme Court or High Court. But when it comes to DPSP, it is a non-justificable in nature, right? And the DPSP is borrowed from the Irish Constitution. Now, why we talk about that DPSP is a positive in a connotation? Because it establishes the socio and economic democracy in the country, and that promote the concept of the welfare state and inclusive growth, जिसे बोलते हैं सबका साथ, right? Inclusive growth, सबका साथ. DPSP प्रमोट करता है एक जन कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए, दैट इज नोन एज वेलफेयर स्टेट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ, ठीक है? तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कितने उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसको कौन से कंट्री से बोरो किया, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि द फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होते हैं, दैट दीज DPSPs आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट to promote or to successfully implementation of your governance, because we have seen that in Article 40 there is a concept of Panchayati Raj that is called 3-tier mechanism. जब आप DPSP के सारे आर्टिकल्स अपन डिटेल में देखेंगे, आप इस चीज में नोटिस करोगे कि DPSP में ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई है जो कि भारत को एक जन कल्याणकारी स्टेट बनाए, जो कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए प्रमोट करे. गॉट माय पॉइंट? DPSP इज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये कहा. आप इसको जब मेंस के अंदर आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में, वेदर GS पेपर 2 का ये पार्ट है, ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. या तो 10 नंबर क्वेश्चन आएगा जिसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर जो है डिस्क्राइब करना है. एक आएगा 15 मार्कर जिसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करना है, राइट?
जब कभी भी पॉलिटी से रिलेटेड इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल थिंकर या कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को जब आप कोट करते हैं तो यू शुड बिलीव दैट आपको एक एक्स्ट्रा मार्क कहीं ना कहीं मिलेगा, आधा नंबर या 1 नंबर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है या पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई चैप्टर है, कोई भी प्रियम्बल हो या कुछ भी हो, अगर आपको कोई उस चैप्टर से रिलेटेड कोई कोट पता हो, ठीक है, तो आपको जरूर उसको मेंशन करना चाहिए। इस केस में आपको डीपीएसपी इज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट। मतलब डीपीएसपी जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए, क्योंकि डीपीएसपी में सब कुछ बताया गया है कि लेजिस्लेचर को कैसे काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट का कैसा होना चाहिए या उसकी नीतियां किस तरह की होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो डीपीएसपी में मेंशन्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। जस्ट लाइक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट्स, उसी प्रकार सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सोसाइटी में प्रमोट करना है वो ये इस तरह का एक प्रेशर बनाता है। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है डीपीएसपी एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। फिर आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर है, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव, अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता। डीपीएसपी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को एक स्पेशल लेजिस्लेशन एक्ट पास करना होगा या लेजिस्लेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डीपीएसपी को लागू कर सकती है। फिर उसके बाद दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिसेंबल्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डीपीएसपी जो है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद में व्हाट इन्फ्लुएंसेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिहाइंड द सैंक्शंस ऑफ द डीपीएसपी। मतलब क्या चीज ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के निर्माता थे उनको इस तरह का मोटिवेट किया कि भाई डीपीएसपी को भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में डालना है। द आइडिया ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे पहला। फिर उसके बाद द डिवीजन ऑफ द राइट्स of an individual into the two categories, that is justificable, ठीक है, and that is non justificable। justificable में fundamental rights आ गए और non justificable में डीपीएसपी आ गए। recommended by the NR Rao constitutional advisor। इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, सोशलिस्ट गांधी प्रिंसिपल्स है वो आगे हम देखेंगे। सप्रू कमेटी रिपोर्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। और इसको एक तरह से इसलिए भी डाला गया, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए डीपीएसपी को पार्ट 4 में डाला गया। और ये एक रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर है और डीपीएसपी जो है वो सरकार को प्रमोट करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे सोशियो इकोनॉमी जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करे ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो उनको अपलिफ्ट किया जा सके एजुकेशन के माध्यम से, फ्री लीगल एड के माध्यम से और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हम डीपीएसपी के आर्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, object and the purpose behind the directive principles of the state policy. I've already told you that the founding fathers of our Indian constitution, they were aware about the drawbacks of the country that has been suffering from such as poverty, unemployment, lack of education, socio-economic and political backwardness, because at the time of independence that India was got drained by the colonial powers for the 200 years. Right, so when they left us, India was highly poor country, unemployment rate was at the highest of the times, education was nowhere in the society, and socio-economic and political disparities were so high in the society. To come up from these important problems, the main agenda that constitution makers set in the mind is just to implement the DPSPs, and then later on we can uplift our Indian citizens from these problems. So in the order to eradicate these evils, they set forth in the very preamble that the ideas and the objectives that should be achieved by the government of the day,
whether it is central government or whether it is the state governments, because I told you that DPSP, that they have a positive connotation, that they force the government to implement the policies which provide the socio and economic equality and democracy in the country. Got my point? Already told you. ठीक है? And then these rights are broadly categorized into the different things. They promote the political and civil rights, they promote social and economic rights. The political and civil rights which were in the opinion with the reach of individual were provisional as fundamental right. मैंने आपको बताया था ना, पॉलिटिकल और सिविल राइट, वो राइट टू प्रॉपर्टी जैसे डाला था, फिर उसके बाद उसको हटा लिया गया, वो बात अलग है. लेकिन जो पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट में क्या क्या है, जैसे राइट टू वोट डाल दिया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच डाल दिया. उसके बाद आपने देखा कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स एंड क्रीड. फिर उसके बाद हमने देखा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी. तो ये सब जो थे तमाम तरह के पॉलिटिकल और सिविल राइट्स, ये तो थे फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से. बट इनको इस तरह का भी कुछ करना था कि सोसाइटी के अंदर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कैसे प्रिवेलेंट किया जाए या कैसे प्रमोट किया जाए, उसकी वजह से इन्होंने डीपीएसपी को जो है ऐड किया. फिर नेचर क्या है डीपीएसपी का? एडमिक्सचर है, हेल्दी ब्लेंड ऑफ सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि डीपीएसपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सोशलिस्ट, गांधीस्ट और लिबरल, या जिसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं. ठीक है, फंडामेंटल गाइडलाइंस इन द गवर्नेंस. डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट आप ये लाइन लिख सकते हो जब आपसे 10 मार्कर या 15 मार्कर पूछा जाए कि दैट फंडामेंटल गाइडलाइंस इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. DPSP sets the fundamental guidelines for the governance of a country. DPSP sets the fundamental guidelines for the governance of a country, right? फिर they are fundamental principle as opposed to fundamental right. non justificable है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं. रीजंस ऑफ द नॉन जस्टिफिकेबल क्या है? देखो, इसको जस्टिफिकेबल इन नेचर ऑफ द राइट्स इंटेल्स दैट सिटीजंस कैन मूव टू द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द पर्टिकुलर राइट. जैसे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो बार बार कोर्ट चले जा रहे थे लोग. बट अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं कर पाती ठीक से, क्योंकि सरकार के पास उस वक्त जब आज़ाद हुई तो इतने संसाधन नहीं थे, इतने इकोनॉमिक शक्ति नहीं थी कि उस वक्त जो है इसको इंप्लीमेंट करवा पाते, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत पैसा खर्च होता और कल को हर आदमी, तीसरा आदमी उठ के कोर्ट में खड़ा होता. तो जो है गवर्नेंस के लिए और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से ये चुनौती बन जाती. इसलिए इसको एक बार के लिए उन्होंने नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर के रूप में रखा. ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल लिमिटेशंस जो थी, सम प्रिंसिपल्स हैव द मॉरल कॉन्टेशंस थे. ठीक है, तो इस वजह से इसको एक बार के लिए नॉन जस्टिफिकेबल इन द रीजन रखा. क्योंकि आपको मालूम है उस वक्त सरकार के जो सबसे बड़ा ध्यान था सरकार का, वो ये था कि भाई कैसे हम इलिटरेसी को रिमूव करें, पॉवर्टी को रिमूव करें, जो सोसाइटी के अंदर और बैकवर्डनेस है उसको हम कैसे रिमूव करें. वो जो सरकार का था, वो प्राथमिक जो था मुद्दा था उस वक्त सरकार का. इसलिए सरकार ने देखा कि फाइनेंशियल हमारे पास अभी इतनी स्थिति मजबूत नहीं है, इसको आगे अगर भविष्य में कभी हमें लगेगा तो इसको हम जो है इसको जस्टिफिकेबल नेचर बना देंगे. ठीक है, तो दैट वाज द प्राइम आइडिया बिहाइंड दैट. Now, the relevance of the non-justificable nature of the DSP in the present DPSP are very broad in their content and spread. Different states have varying and limited resource to the fulfill. देखो, आज हर स्टेट, अगर इंडिया एज ए स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, अलग कॉस्ट्यूम है, अलग रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेके. कोई यूनिफॉर्म प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, बिकॉज इसीलिए कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. भाई रेगिस्तान वाले इलाके में अलग प्रॉब्लम है, जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें अलग प्रॉब्लम है, हिली एरियाज में अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो इधर सेंट्रल हाईलैंड्स में जो हैं प्लेट्यू स्टेट्स हैं उनमें अलग प्रॉब्लम्स हैं. तो इन सारी चीज़ों को जो है सॉल्व करने के लिए उनको लगा कि इसको एक बार जो है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले बाकी चीज़ों को ठीक करना था. ये चीज़ें तो बिकॉज
DPSP itself is the part of intellectual part of the Indian Constitution. So वो उनके लिए उस वक्त इतनी प्राथमिकता नहीं थी, इसीलिए उसको एक बार जो है उसको नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर वाले सेक्शन के अंदर उसको रखा. फिर आगे हम देखते हैं कि DPSP आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स. ऑल्दो DPSP आर नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर, दे फुलफिल देयर गोल्स इन द ग्रेटर वे. राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन राइट इन योर नोट्स. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाउएवर द स्टेट्स आर आल्सो टेकिंग प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव मेजर्स टू फुलफिल. हर स्टेट जो है वो प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव मेजर्स ले रहा है ताकि ये जो गोल्स थे DPSP के इनको फुलफिल किया जा सके. और एक स्टेट का जो नेचर है उसको या स्टेट है उसको वेलफेयर स्टेट बना दे. ठीक है, हर स्टेट अपने, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो अपने ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ लॉज लेके आते हैं जिनको पार्लियामेंट भी सपोर्ट करती है, और फिर उसके माध्यम से इनको स्पेशल स्टेटस का रिकॉग्निशन मिला हुआ है. हर स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. हर स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर लेजिस्लेचर्स अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं. अब अपन देखते हैं कि ये जो DPSPs थे इनको 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताया, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल. ठीक है, तो इनको कैसे हमने कैटेगराइज किया, देखते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से. पहले अपन लाइन से एक बार सोशलिस्ट देखेंगे सारे, फिर उसके बाद लाइन से एक साथ गांधीयन और देन लिबरल. ये तीनों को पैरेलल नहीं लेके चलेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल से. आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द promotion of welfare of the people, added by 44th constitutional amendment, nationalization of the LIC and the 14 leading commercial bank. स्टेट आर्टिकल 38 ये कहता है कि जो स्टेट को सिक्योर करना है सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द, लोगों का कल्याण करने के लिए. तो इसीलिए जो बैंक थे इंदिरा गांधी के टाइम पे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था, और जो LIC थी वो उसको नेशनलाइज किया ताकि लोगों का विश्वास जो है इन इंस्टीट्यूशन में बढ़े और भागीदारी बढ़े इन इंस्टीट्यूशंस के तरफ. ठीक है, और ताकि और इंडिया जो है दैट गोज टुवर्ड्स द वेलफेयरिज्म. ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है. उसके बाद आप आर्टिकल 39 देख सकते हो, सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट. 39B/C एक्सेप्शंस टू द आर्टिकल 14 और 19. 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ. ये थोड़ा सा इसमें ठीक है. फिर उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में ऐड किया. ये भी सोशलिस्ट है. भाई सोशलिस्ट का मतलब क्या है, एक तरह से लोगों को कॉन्टेक्स्ट में रखा जा रहा है और कैसे उनका भला हो. तो गरीब लोगों को फ्री एंड लीगल एड की एक सुविधा दी. मान लो किसी के पास कोई गरीब आदमी है, उसके खिलाफ कोई शोषण हो गया और वो कल को कोर्ट में जाना चाहता है लेकिन वकील को हायर करने के पैसे नहीं है, तो आर्टिकल 39A के माध्यम से गरीब को फ्री लीगल एड दिया जाएगा. ठीक है, और एक इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई 1987 में. सोशलिस्ट प्रिंसिपल है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, राइट टू वर्क. हर आदमी को जैसे मिनिमम राइट टू वर्क है, जैसे 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी ना मनरेगा एक्ट के माध्यम से, कि हर आदमी को काम करने का अधिकार है, जिसमें एक मिनिमम इनकम रख दी गई कि भाई हर आदमी को 100 या 105 रुपए जो है 100 दिन का काम मिलेगा. तो जिससे कि लोगों को ये फील हो कि हमारे पास राइट टू वर्क है, हमारे पास ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हम काम नहीं कर पा रहे हो तो सरकार जो है इंटरवीन करके हमको रोजगार देगी. ठीक है, फिर उसके बाद सोशलिस्ट प्रोविजन में हम देखते हैं प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमेन कंडीशंस, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. मैटरनिटी लीव मिलती है, इक्वल रेम्यूनरेशन, चाहे पुरुष हो या महिला हो सबको समान वेतन मिलना चाहिए अगर वर्क इज इक्वल. ठीक है, सेम पोस्ट पे अगर 2 आदमी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल की द सैलरी ऑफ अ मेल इज बिलो अ फीमेल और द सैलरी ऑफ अ फीमेल इज बिलो मेल. मतलब दैट शुड बी इक्वल. नाइदर फीमेल शुड हैव द ऑन द हायर एज और नाइदर मेल शुड बी ऑन द हायर एज. ठीक है, मैटरनिटी लीव दी हम लोगों ने आर्टिकल 42 के माध्यम से. जो महिलाएं जो हैं when they in the course of their pregnancy
to have a safer side for their baby, that government has provided the maternity relief, right? फिर उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 43 है, लिविंग वेज ऑफ द वर्कर, वेज इंक्लूड द हेल्थ इंश्योरेंस, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, 43 है पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ये दे शोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। फिर 47 में फर्स्ट पार्ट ओनली, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा कि मिड डे मील और इस तरह की तमाम तरह की जो योजनाएं हैं वो जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे कि जो है बहुत सारे लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं जिनको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वो स्कूल लेवल पे ही उनको मिल जाता है। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो डीपीएसपी से आया कि कैसे गांव में रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के जो लोग हैं उनको कैसे हम जो है वो जोड़ा जाए हेल्थ सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि हर आदमी तो शहर में आके इलाज नहीं करा सकता। ठीक है, फिर अब देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, द प्रोविजन फॉर प्रीकसर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज कब हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है ना, ये पंचायत, ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 40 में था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायती। ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमने बनाई थी 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के माध्यम से, ये ऑलरेडी डीपीएसपी में है एंड दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गांधीयन। ये एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 40 जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है या लिबरल प्रिंसिपल है। अब वी कैन टेक टू दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फॉर द सिटीजन्स, कि सारे सिटीजन्स के लिए सेम सेट ऑफ लॉज होने चाहिए या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपन एक दिन अलग क्लास ले सकते हैं, उस पर 1-1.5 घंटे की क्लास अलग हो सकती है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, what are the advantages of the uniform civil code and what are the disadvantages of a uniform civil code in India, a society where a country which is highly diverse, be it in terms of language, be it in terms of fooding style, be it in terms of culture, be it in terms of anything. India is a highly diverse country, and you know, when you wanted to make a uniform such a diverse country, there are always an advantage and disadvantage both, right? So we can take a different class someday on uniform civil code, right? So next is Gandhian principle. Gandhian principle में the second part, article 43 to promote cottage industry and individual। ये जो आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो होता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो द एज ऑफ 6, 42 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड किया गया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दिया गया कि शिक्षा का अधिकार सबको है, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, ऐसे राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया गया। वो किसका पार्ट है? लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट के अंदर पंचायती राज है, 9th ए के अंदर जो है ये म्युनिसिपल वाला है, और 9th बी के अंदर ये कोऑपरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th बी पार्ट के अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला एक्ट है। ठीक है, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। ठीक है, जहां गांव के स्तर पे ही लोग अपनी सोसाइटीज बना के एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एंड यू नो दे कैन प्रमोट आई मीन what we call economic, they can eradicate the economic disparities, right, by promoting their local products or whatever you call। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हो गया 48 में, ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर एलिमेंट हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट सीड फर्टिलाइजर इरिगेशन। ठीक है, जैसे आपको याद होगा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हिंदुस्तान के पहले पास तो जो अनाज भी नहीं था खुद का खाने का। ठीक है, तो हम बोरो करते थे बाहर से, फिर जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया पूरा तक जो है किस्मत बदल गई, जो इंडिया जो है वो एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया। तो ये कहाँ से आया? ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, सरकार को ये दबाव था, सरकार की ये गारंटी आई मीन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे हम हमारे एग्रीकल्चर को या एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस के ऊपर डेवलप करें, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो है जो फूड ग्रेन्स हैं या वेदर इट इज़ वीट, राइस, मेज, एनीथिंग,
जो एक फुलफिल हमारे सोसाइटी की नीड्स को हम फुलफिल कर सकें या कैटर कर सकें। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल। फिर ये गांधीयन प्रिंसिपल जो SC/STs के लिए जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन हो, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो फिर EWS को 10% का जो है रिजर्वेशन दिया, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है। लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर क्या है, प्रोटेक्शन करना है हमें, इंप्रूवमेंट इन्वायरमेंट का, सेफ गार्ड में फॉरेस्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 19। तो कैसे हम हमारे जंगल, जमीन, पानी, हवा, वातावरण, इसको कैसे जो है इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, दैट इज द पार्ट ऑफ द लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ, शराब नहीं पीनी है, ड्रग्स नहीं ले रहे हैं विच इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। 49 में क्या हमने देखा, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारी राष्ट्र धरोहर है उसको कैसे हमें जो है बचा के रखना है, हाउ वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट, ठीक है। सरकार को डिफरेंट एक्ट्स लेके आने पड़े, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिमेन्स एक्ट 1951 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा कैसे सरकार को ये सब चीजें करने के लिए एक एक्ट लाने पड़े ताकि उन चीजों को हम कंजर्व कर सकें, बचा सकें। तो ये इस चीज का नाम है DPSP। जब सरकार को वो मजबूर करे कि हमें सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस बढ़ाना है या सोशल जस्टिस बढ़ाना है या बहुत सा इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, या सोसाइटी को न्यूट्रिशन देना है, हमारे फॉरेस्ट को बचाना है, वाटर को बचाना है, एयर को बचाना है, तो ये सारी जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, विलेजेस के अंदर पंचायती राज सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस। दैट इज वाई वी कॉल DPSP इज अ फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, ठीक है। तो वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद में सेपरेशन ऑफ द, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन जो जो सेटअप है हमारा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो आर्टिकल 50 के अंदर बात की गई है कि जुडिशरी को सेपरेट रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, इसीलिए हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टेट, प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट, ये हमने देख ही लिया, ठीक है। अब वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। देखो पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव है बिकॉज ये प्रोहिबिट करते हैं स्टेट को कि आप ये चीजें कर नहीं सकते, ठीक है। ये नेगेटिव है बिकॉज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। सेम टाइम DPSP पॉजिटिव है बिकॉज ये कंपेल करते हैं टू स्टेट को कि आप एक्शंस लीजिए जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। समझ में आया? नंबर 1 पॉइंट, एक तरफ DPSP जो है वो कंपेल कर रही है और एक तरफ जो है फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये है जस्टिफिकेबल इन नेचर, 1000 बार बता चुका हूं, फंडामेंटल राइट जस्टिफिकेबल इन नेचर, ये नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर। फिर इसका एम है एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इसका एम है एस्टेब्लिशिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। आप इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये लीगल सैंक्शंस हैं, ये मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस है। भाई फंडामेंटल राइट तो लीगल सैंक्शन है, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज पीपल कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे इस तरह का कोई प्रोविजन है नहीं, वो तो सरकार की मोरालिटी और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेदर दे विल अपलिफ्ट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम्स और नॉट, ठीक है। दैट डू नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंट, ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो लागू ही रहते हैं हमेशा, और इनको सरकार जो है वो लागू कर सकती है, बट फॉर दैट दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड फॉर द वायलेट ऑफ, कोर्ट्स फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और मैंने आर्टिकल 13 में बताया था, एनी लॉ विच इज inconsistent or derogatory with a fundamental right, that is null and void. People can directly visit the Supreme Court, but when it comes to the DPSP, in the case of DPSP, the courts cannot declare a law invalid if they violate the fundamental rights. DPSP को implement करने के लिए कोर्ट ने ये बोला कि अगर कुछ DPSP को हमें implement करने के लिए fundamental rights को violate भी करना पड़ा, तो इसका क्या करना है वो आगे हम important cases में देखते हैं। फिर क्रिटिसिज्म क्या है DPSP का, एक तो ये लीगल फोर्स नहीं है, ब्लैंक चेक है एक तरह से, मैंने आपको बताया जस्टिफिकेबल इन नेचर नहीं है। फिर इलॉजिकली अरेंज्ड है, DPSP हैव बीन क्रिटिसाइज्ड व्हेन दे अरेंज इन लॉजिकल मैनर विदाउट एनी कंसिस्टेंट फिलॉसफी। भाई 42 सोशलिस्ट वाला है, फिर बीच में 44 सिविल वाला आ गया, ठीक है, फिर 48 में इधर लिबरल इंटेलेक्चुअल 8 में आ गया, तो कहने का मतलब इलॉजिकली अरेंज्ड है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स,
some provisions are outdated, not consistent with the 21st century's philosophies. Examine the banning of intoxicating drinks. हो सकता है. Might lead to the confusion and conflict. Can cause conflict between the center and state during the implementation of DPSP. फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेंगे. डीपीएसपी को कई बार इंप्लीमेंट करने के चक्कर में जो कंफ्यूजन हो सकता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन केसेस में देखा कि कैसे कंफ्यूज है कि फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्राइमेसी देनी है कि फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्राइमेसी देनी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ज्यादा प्राइमेसी देनी. तो ये इस तरह की सारी चीजें हमने देखी है. Conflict between the president and cabinet center state could also occur. State could be dismissed in the case of non-compliance. President might not give assent if the laws made give to the DPSP. कई बार ऐसा होता है कोई स्टेट जो है वो मान लो सेंटर के अंदर दूसरी गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर दूसरी गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है. मान लो सपोज यहाँ पे एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है और यहाँ पे वाई पार्टी की गवर्नमेंट है. अब एक्स पार्टी का आदमी प्रेसिडेंट है भाई, एस तो अपोजिशन पार्टी है, इसकी यहाँ पे स्टेट में गवर्नमेंट चल रही है. इन्होंने मान लीजिए अपने राज्य की जनता के लिए कोई वेलफेयर के लिए एक पॉलिसी निकाली और इसको गवर्नर ने मना कर दिया. मान लो इन्होंने बाद में प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट ने विदोड कर दिया, मना कर दिया. तो ये इस तरह का टसल भी होता है कई बार डीपीएसपी को लेके. तो ये सब इस चीज में ये बताने की कोशिश कर रहा है ये पॉइंट. फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंट केस Champakaran and Doranjan case 1952. Court asserted that fundamental right are superior. 1952 के चंपाकरण दोरांजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट वो सुपीरियर है ओवर डीएसपी दैट कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू डीएसपी. ठीक है. फिर केरला एजुकेशन केस में 1957 में सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोपाउंडेड जो डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन टू अवॉइड सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय एनफोर्सिंग डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट. जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है जब सोसाइटी को हार्मोनियस बनाना है लेकिन स्टिल देयर इज सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, तो वो केरला एजुकेशन बिल 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ताकि सोसाइटी के अंदर कभी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है लेकिन बार बार आप ये कह के चले जाओगे कि साहब फंडामेंटल राइट. अब जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, वो इसीलिए हटाया गया था क्योंकि कुछ लोगों के पास तो इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी. हर तीसरा अब सरकार को ये था कि लैंड पूलिंग हम करें, जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेके और गरीब लोगों में लैंड डिस्ट्रीब्यूट करें जिनके पास बिल्कुल नहीं है. तो अब था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, हर तीसरा आदमी जाके कोर्ट में पहुंच जाता कि साहब ये वायलेट कर रहे हैं. तो इस चीज़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, उसको हटाया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल डाला गया, 9th शेड्यूल, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई लॉ को डाल दिया गया तो वो आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है. फिर ये गोलकनाथ केस में कोर्ट ने असर्ट किया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट एब्रिज और डाइल्यूटेड. फंडामेंटल राइट को ना आप तो एब्रिज कर सकते ना डाइल्यूट कर सकते. फंडामेंटल राइट दे आर स्कैरोसेंट एंड एब्सोल्यूट इन नेचर. फंडामेंटल राइट को आप किसी भी कीमत पे जो है वायलेट नहीं कर सकते. फिर वही केशवानंदी भारती केस जो हिस्टोरिक केस था, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है. ये सारी चीजें थी. फिर मिनर्वा मील केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक यहां पे जो है पार्लियामेंट को जो है बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस which talks about the balance between fundamental right and DPSP. The historic case is known as the Minerva Mill case of the 1980. Got my point? Now, next, डायरेक्टिव आउटसाइड द डीपीएसपी. ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कि आउटसाइड द डीपीएसपीज हैं, मतलब डीपीएसपी में इंक्लूड नहीं है ये आर्टिकल्स में 36 to 51 वाले में, लेकिन स्टिल दे आर. विच आर दीज? The claim of SC and STs to service in consistency with the maintenance of efficiency. ठीक है. आर्टिकल 350A, 350A, इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज. भैया आप प्राइमरी स्टेज के ऊपर आप मदर टंग से उसको एजुकेट कर सकते हो. ठीक है. चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप. ठीक है. ये भी एक डीपीएसपी है क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का फ्रीडम है इंडिया के अंदर. आर्टिकल 350A के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि हर इंसान का इंडिविजुअल अधिकार है अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में लेने के लिए. फिर 351 में डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज बाय द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज
and to develop it so that it may serve as the medium of the expression for all element of the composite culture of India. हिंदी को प्रमोट करने के लिए ताकि वो एक कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया का है उसको प्रमोट कर सके, इसलिए आर्टिकल 351 को भी इसमें डीपीएसपी में रखा गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है वो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, नेगेटिव इन कैनोटेशन है सरकार के, पॉजिटिव इन कैनोटेशन है सरकार को कंपेल करता है कि आपको ये चीज़ें हैं वो जरूरी हैं वो करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंस बताती हैं, जैसे मनरेगा, पंचायती राज सिस्टम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इट इंश्योर्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फुलफिलमेंट ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं डीपीएसपी में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे डीपीएसपी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारा हमने देखा डीपीएसपी में कहां से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डीपीएसपी में एग्जाम में पूछे गए हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी is included in the which of the following? In the Constitution of India, the promotion of international peace and security is included. Obviously, Article 51 में कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और वो किस टाइप का प्रिंसिपल है मैंने आपको बताया था, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। प्रियम्बल में तो देखो 9th शेड्यूल में तो कोई इस तरह की इंटरनेशनल पीस एंड उसकी बात की गई नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी नहीं की, प्रियम्बल में भी कहीं इस तरह की बात नहीं की, तो करेक्ट आंसर वुड बी डीपीएसपी। फिर उसके बाद है 2015 का ही एक क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट है, इनको देखना है। ये जो प्रिंसिपल है ये स्पेल आउट करता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है भैया। द प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये जो प्रोविजन है वो इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट, सही है, करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी 1 and both, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। नाइदर दे आर जस्टिफिकेबल इन नेचर, जब जस्ट नॉन ये हैं नॉन जस्टिफिकेबल इन नेचर तो ऑटोमेटिकली ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। अगर इनको इन्फोर्स करना है तो उसके लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, लेजिस्लेशन लाना होगा, ये बताया था मैंने आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। अगर ज्यादा लॉज होंगे तो लेस लिबर्टी होगी। कंफ्यूज हो सकता है इसमें, हो सकता है कोई आदमी इस क्वेश्चन को टिक कर दे, ठीक है। इफ देर इज नो लॉज, इसमें इफ देर इज नो लॉज देर इज नो लिबर्टी, ये भी हो सकता है। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर लिबर्टी है तो लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, रॉन्ग। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, नहीं, लॉस अमेंड होते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को कैटर कर रहे हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अभी तक 106 अमेंडमेंट एक्ट कर चुका है ना। तो अब देखो इसका करेक्ट आंसर ये है, इफ देयर इज नो लॉस। जब कोई लॉ ही नहीं है तो इंसान लिबर्टी किस चीज की मांगेगा भाई? लिबर्टी तो तब होगी ना जब जहां पे लॉ हो। फंडामेंटल, जब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट किस चीज का होगा, ये समझिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए फंडामेंटल राइट है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझिए। इफ देयर इज नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी। ये देयर आर मोर लॉस, ऐसा नहीं है कि ज्यादा लॉस होंगे तो लिबर्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे लॉ, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ है, 1000 तरह के लॉ हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि लिबर्टी नहीं है। तो द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज नॉट बेस्ट सुटेबल, द करेक्ट आंसर इज देयर आर नो लॉस देयर इज नो लिबर्टी, राइट। Now, which principle of the which among the following was added to the directive principle of the state policy by the 42nd amendment of the Constitution? इनमें से कौन सा principle है among the following was added to the directive principle of the state policy by 42nd amendment of the 1976? Equal pay for the equal work both men and women, participation of the worker in the management industries, right to work, education, public assistance, securing living wages and human conditions to the workers. ये option D would be wrong, option C would be wrong. I think the correct answer would be participation of workers in the management and industry. ठीक है, in people may confuse between A and B, but the correct answer would be B. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे
with reference to the Constitution of India, the directive principle of the state policy constitutes limitation upon. डीपीएसपी किसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर या एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर? मेरे ख्याल से दोनों पे नहीं लगाता. द करेक्ट आंसर वुड बी नाइदर वन नाइदर टू. If the reference to the constitution, the directive principle of the state policy constitution, limitations upon, legislature के ऊपर तो लगा नहीं सकता, executive के ऊपर लगा सकता है कि भाई आपको ये करना होगा. But the correct answer would be, I think, neither one or two, right? So this was all about today's class. ठीक है, मिलते हैं next class में with a new topic that is called fundamental duties. ठीक है, till then keep watching ATS and keep revising. Thank you.